Next step is pi into limit n tends to infinite 1 by n 1 by n bracket. Now this is 1 plus 1 plus 1 up to n time. Total n steps are there. So n number of ones are there. So it's a 1. It's a n. N number of ones are there. 1 plus 1 plus 1 plus 1. N time 1. So it's a n plus. Now check this one. 5 by n, 5 by n, 5 by n. All terms consist of 5 by n except the first term. So here we are taking this 5 by n as a common. So take this 5 by n as a common. So remaining terms are this is 1 plus 2 up to n minus 1. So it's a 5 by n common, so it's a n minus 1. So it's a 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. So it's a sum of 1 plus 2 plus 3 up to n minus 1. Done. Now here you have to apply the formula of sum of n term. We know sum of n term is कल ही लिखा था n by 2 n plus 1 by 2. But here instead of n we are having n minus 1. So what is the sum of n minus 1 term? Sum of n minus n term will be, this is n minus 1, this will be n divided by 2. So sum of n minus n term is n by 2 n minus 1. So replacing this one with n minus 1 by 2. So next step, this is equal to phi limit n tends to infinity, n tends to infinity 1 by n. This one is n plus 5 by n, and this one sum of n minus 1 term. Sum of n minus 1 term is n minus 1 by 2. So it's a multiplication n minus 1 by 2. So here these two terms are in multiplication, so this n will be cut. Done. So we are having phi limit n tends to infinite 1 by n plus, this will be phi into n minus 1 by 2, phi into n minus 1 by 2. और यहाँ पर आपको एक्सपांशन करने के लिए जल्दबाजी नहीं करनी है ना, ये लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी है, तो ये n को भी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा देखो, दिस इज इक्वल टू phi limit n tends to infinite, taking this 1 by n inside this bracket, so it's n upon n 1 plus, now this phi into n minus 1 by n, तो यहाँ से n कॉमन लेंगे ना तो ये n कट हो जाएगा. So remaining terms are phi by 2, and this will be 1 minus 1 upon n, and that will be n minus 1 by n, और ये n कॉमन लिया था वो कट हो गया. Done. Now applying our limit. So limit n tends to infinity, so replacing n with 1 by infinity is 0. So it will be phi into 1 plus phi by 2. 1 plus phi by 2 is 7 by 2. So it's a phi into 7 by 2. And therefore our answer will be 5 sevens are 35 by 2. This is the answer of your limit. Question number 2. Clear? Doubt इसमें किसी को? ऋषिराज, कुशल, सेजल, सेजल है? वीडियो सब ऑन रखना है, अदरवाइज घर पर मेमो आएगा ऑनलाइन. थर्ड वन, क्वेश्चन नंबर 3. इंटीग्रेशन I इक्वल टू 2 to 3
एक्स स्क्वेयर डी एक्स। फर्स्ट सम देखो, फर्स्ट सम ने किया था एक्स डी एक्स और थर्ड सम है हमारा एक्स स्क्वेयर डी एक्स, है ना। तो यहाँ पर हमारा पहले फॉर्मूला लिख देते हैं। फॉर्मूला इज, है ना, फॉर्मूला ही हमारी जिंदगी है। तो इट्स ए टू बी इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन एफ ऑफ एक्स डी एक्स फ्रॉम ए टू बी इज इक्वल टू बी माइनस ए, बी माइनस ए, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n into f of a plus f of a plus h plus f of a plus 2h कहाँ तक, प्लस f of a plus n minus 1 h यहाँ तक, और ब्रैकेट ओवर फॉर्मूला। नाउ व्हाट इज अवर a to b, a equal to 2, वैल्यूज लिख लेते हैं। सो हियर और वैल्यू ऑफ a is 2, a to b is 3, b is 3. Function f of x is x square, and also we require width of each strip, that is our h का फॉर्मूला क्या था, h is b minus a by n. So 3 minus 2 by n, 3 minus 2 1 by n, h को रिप्लेस करेंगे 1 by n से। दिस इज our h equal to 1 by n. ये रहा h, डन। So now formula, applying our formula here, इंटीग्रेशन i इक्वल टू सम ऑफ लिमिट्स, है ना, सम ऑफ लिमिट्स को हम बोलते हैं s ऑफ n, ये s ऑफ n का फॉर्मूला है। सो s ऑफ n इक्वल टू b माइनस ए, 3 माइनस 2 1, 1 ही आएगा सिर्फ, है ना, ये b माइनस ए 1, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n ब्रैकेट f of a, f of 2 plus a plus h, f of a equal to 2 and h equal to 1 by n, so it's a 2 plus n, f of 2 plus 1/n plus f of, यहाँ पर क्या होगा, a plus a मतलब 2 plus 2 into h, so it's a 2/n, कहाँ तक, प्लस अप टू f of a plus n minus 1 into h, है ना, ये हमारा h है, h is 1 by n, so 1/n, डन। नाउ रिप्लेस दिस फंक्शन f of x, है ना, हमारा f of x है क्या है, x स्क्वायर है, तो जो 2 होगा तो उसका 2 स्क्वायर होगा, 2 plus 1 by n है तो उसका स्क्वायर होगा, है ना। ये एकदम ध्यान से देखना है इसको, यहाँ तक समझ में आ गया। f of 2 plus 1 by n plus f of 2 plus 2 by n plus 2 plus n minus 1 by n। अभी ये f of x की वैल्यू x स्क्वायर से रिप्लेस कर दें, तो f of 2 is 2 स्क्वायर, 1 को अभी, है ना, निकाल देते हैं, लिखते नहीं है, तो इट्स अ लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n ब्रैकेट f of 2 क्या होगा, 2 स्क्वायर प्लस f of 2 plus 1 by n, so 2 plus 1 by n square, it's a 2 plus 1 by n square plus 2 plus 2 by n square, 2 plus 2 by n square, कहाँ तक, तो यहाँ तक 2 plus n minus 1 by n square, डन। नाउ क्या दिख रहा है इसमें, ये स्क्वायर वाले है ना, सबको एक्सपांशन करके ब्रैकेट ओपन करके लिखते हैं तो कुछ होगा। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n, दिस इज 2 स्क्वायर प्लस, इसको ओपन करेंगे तो क्या होगा, है ना, a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला है, फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड स्क्वायर प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म,
सो इट्स अ 2 स्क्वायर, है ना, इसको ये लिखा, और इसको मैं लिख रहा हूँ फर्स्ट टर्म स्क्वायर 2 स्क्वायर प्लस लास्ट टर्म स्क्वायर प्लस 1/n² प्लस 2 इंटू फर्स्ट इंटू सेकंड टर्म, 2 2 ज़ा 4/n, तो ये सेकंड टर्म को लिखा, प्लस इसको भी एक्सपांशन करते हैं तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म स्क्वायर तो 2 स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म स्क्वायर, so it's a 2 square by n square, 2 square means 4 by n square plus 2 2 जा 4 2 जा 8 by n, 8 by n, ये क्या लिखा, इसका एक्सपांशन ये लिखा, है ना, कहाँ तक जाएगा, अप टू लास्ट टर्म तक, सो दिस विल बी अवर लास्ट टर्म, इसका क्या होगा, इसको लिखना है, सो प्लस, है ना, ये यहाँ से लिखते हैं, two terms are there, 2 plus n minus 1 by n whole square is there, so first term square 2 square plus last term square, it's n minus 1 square upon n square, n minus 1 square upon n square plus 2 into first into second term, 2 2 is 4, 4 n minus 1 by n, ब्रैकेट ओवर, डन। ये क्या लिखा, तो ये जो टर्म है ना, इसका एक्सपांशन, ये वाली टर्म का एक्सपांशन ये है, क्लियर। नाउ यहाँ पर देखो तो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर सब में आ रहा है ना, देखो 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर 2 स्क्वायर, हर एक टर्म में से 2 स्क्वायर बाहर आ रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, तो कि एन स्टेप है हमारी, एन, तो एन टाइम 2 स्क्वायर आएगा, 2 स्क्वायर मीन्स 4, 4 प्लस 4 प्लस 4 एन टाइम, है ना, इसके आगे वाले सब में 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम था, तो हमने एन लिखा था, अभी 4 प्लस 4 प्लस 4 एन टाइम है, तो क्या आएगा 4n, सो दिस इज इक्वल टू, so this is equal to limit n tends to infinite 1/n 4n, है ना, 4n प्लस, अभी आके देखो ये सेकंड टर्म का एक्सपांशन, थर्ड टर्म का एक्सपांशन, फोर्थ टर्म का एक्सपांशन, सभी एक्सपांशन देखो तो उसमें आपको ये 2 स्क्वायर ले लिया, उसके बाद ये n स्क्वायर और n वाली टर्म बचेगी, तो ये जो n वाली टर्म है ना, उसमें से हम n कॉमन ले सकते हैं, या फिर डायरेक्ट में है ना 4 8 ऐसे आ रहा है ना, 4 सब में 4 4 कॉमन आ रहा है, सो टेकिंग प्लस 4/n कॉमन, सो 4/n कॉमन, सो रिमेनिंग टर्म्स आर, यहाँ से 4/n लेंगे, एक मिनट रुको, यहाँ से 4/n कॉमन लेंगे, इसमें से लेंगे, है ना, और यहाँ से लेंगे, तो क्या बचेगा 4 कॉमन, तो ये 1 2 ऐसे करके n-1 तक आएगा, सो 1 + 2 अप टू n-1, क्लियर, क्योंकि ये फर्स्ट टर्म है ना, उसमें 4/n नहीं है, तो एक टर्म हमारी कम होगी, यहाँ से स्टार्ट हो रही है, सेकंड टर्म से हमारी 4/n कॉमन आ रही है, तो एक टर्म कम हो गई तो n-1 आएगा, n नंबर ऑफ टर्म्स में से 4/n कॉमन नहीं आएगा, क्लियर, सो 4/n कॉमन, so it's a 1 + 2 + 3 up to n-1, it's a 1 + 2 + 3 up to n-1 टर्म का सम, 4/n कॉमन लिया, प्लस, है ना, 4/n, और दूसरा क्या कॉमन आ रहा है, ये n स्क्वायर वाली सब टर्म है, उसमें से n स्क्वायर कॉमन निकालो, ये कहाँ तक, n-1 तक, है ना, सो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर अप टू n-1 स्क्वायर बचेगा, क्या कॉमन लेंगे, 1 - n स्क्वायर, 1/n स्क्वायर, सो नाउ नेक्स्ट कॉमन टर्म इज 1/n स्क्वायर, remaining terms are 1 plus 4, 4 means 2 square, and here n-1 square, so it's a 1 square plus 2 square up to n-1 square, done. Now for the next step we are applying the formula of these two sum of these sequences, sum of n term and sum of square of n-1 term, दोनों formula हमारे पास है, so this is equal to limit n tends to infinite 1/n 4n plus 4/n, ये फॉर्मूला हमने अभी यूज किया, इसके आगे वाले सम में, सम ऑफ n-1 टर्म, n इंटू n-1 बाई 2, n इंटू n-1 बाई 2 प्लस
1/n², और ये फॉर्मूला है ना, 10th स्टैंडर्ड में स्टडी किया था, किसी को याद हो तो। सम ऑफ लिखना पड़ेगा, क्या था, सम ऑफ एन टर्म है ना, सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्क्वायर टर्म ना, 1² + 2² + 3², हमारे पास 3 फॉर्मूला थे, सम ऑफ एन टर्म, सम ऑफ एन टर्म ऑफ स्क्वायर एंड एन टर्म ऑफ क्यूब। तो ये फॉर्मूला था हमारा, ऐसा लिख के याद आ जाएगा। एस ऑफ एन इक्वल टू n/6, याद आया, n+1, 2n+1, ये था। अभी यहाँ पर n नहीं है, क्या है, n-1 है, तो सम ऑफ n-n टर्म्स क्या होगा, तो जहाँ पर n है वहाँ पर n-1, तो यहाँ पर n-1 करेंगे तो n आ जाएगा, तो इसका होगा n, इसका होगा n-1, और इसका होगा 2n-1 + 1, so it's a 2n+1, done. So s of n-1 will be n-1 2n+1/6। ये फॉर्मूला हमारा सम ऑफ n-1 टर्म हुआ, इसके लिए सम ऑफ n-1 टर्म है ना, ये तो पता ही है। तो ये रहा, यहाँ पर लिखते हैं 1/n² इंटू n-1 n-1 2n+1/6, डन। अभी इसका सिंप्लीफिकेशन करना है, जस्ट है ना। तो यहाँ पर लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n, क्या करेंगे, एक काम करते हैं, सब है ना कॉमन निकालना स्टार्ट कर देते हैं। तो यहाँ से एक n यहाँ पहले कट कर दो, चलो ये 4/n इंटू n, तो एक n कट हो गया है ना, और यहाँ से लिखो 4n प्लस ये एक n कट हो गया, तो ये हो गया, यहाँ से 2 है ना, ये 2 भी कट कर दो, तो ये 2, सो ये 2n-1, 2 इंटू n-1 प्लस 1/n² है ना, यहाँ पर कुछ कट नहीं हो रहा है, तो 1/n² इंटू n-1 2n+1/6 और ये पूरा ब्रैकेट कंप्लीट। अभी क्या करेंगे हम, यहाँ पर 1/n है ना, तो सब में से n कॉमन लेंगे, और यहाँ पर देखो एक n, दूसरा n और तीसरा n, 3 n कॉमन निकालेंगे तो n³ होगा, क्या होगा, n³ है ना। यहाँ से n कॉमन निकालेंगे तो 1 2 and 3, तो n³ होगा, n³/n², तो एक n ही बचेगा, और उसको भी बाहर ले लेंगे तो ये n के साथ कट हो जाएगा। तो हर एक टर्म से एक एक n कॉमन निकल रहा है, देखो यहाँ से n कॉमन आएगा बाहर, तो इसके साथ कट है ना, क्योंकि ये 1/n है, तो ये बाहर n लाने के लिए ये जो तीनों टर्म है ना, तीनों टर्म में से हमें n निकालना पड़ेगा, तो ये n डायरेक्ट आ गया, यहाँ पर भी n डायरेक्ट आ गया, और यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर n इंटू एन इंटू एन, n³ है बाय n², तो ये n² कट होगा और एक n बचेगा, वो भी बाहर आएगा और कट हो जाएगा। इन शॉर्ट ये सब टर्म्स में से n बाहर निकल के इसके साथ कट हो जाएगा, ठीक है। सो दैट इज इक्वल टू, देखो क्या होगा, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, ये n कट हो गया अभी है ना, तो उसको उड़ा दिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा 4 प्लस 2, यहाँ से n कॉमन निकाला तो 1 माइनस 1/n प्लस यहाँ से हमने n और n, तीन टर्म है ना, तीन टर्म में से n निकाला तो n³ तो एक n कट हो गया बाहर, वो भी कट हो गया, तो क्या बचेगा, ये n तो चला गया, यहाँ पर 1 माइनस 1/n, यहाँ पर 2 प्लस 1/n। बस अभी लिमिट अप्लाई करो, पुट n इक्वल टू 1/∞, दिस इज 1/∞ 0, 1/∞ 0, 1/∞ 0, so remaining terms are 4 प्लस, और यहाँ पर एक 6 था ना, तो यहाँ पर 1/6 भी एक बचेगा, सो 4 प्लस 2 प्लस 1/6, और ये 1 इंटू 2, सो ये 2, क्लियर। सो दिस इज 1/3, सो 4 प्लस 2 6 प्लस 1/3, 6 प्लस 1/3, 6 3 is 18 plus 1, 19/3 is the answer. Question number 4, integration I equal to 1 to 4 x² minus x dx, इसको आप ओपन कर देंगे ब्रैकेट,
तो इट्स इंटीग्रेशन 1 to 4 एक्स स्क्वेयर डी एक्स माइनस 1 to 4 एक्स डी एक्स, है ना। तो ये देखो अभी हमने किया है एक्स स्क्वेयर वाला क्वेश्चन नंबर 3 में किया, और ये एक्स वाला क्वेश्चन नंबर 1 में किया। जो लॉजिक है वो सेम लॉजिक अप्लाई करके क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। दो सम हो गए, क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमारा ए और बी था, यहाँ पर ए और बी को आपको रिप्लेस करना है 1 और 4 से, और सेम मेथड से आपको आगे बढ़ना है। तो आप सब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं ना। क्वेश्चन नंबर 5, ये भी अच्छा सम है ना, बोर्ड में आएगा ये, तो इसको अच्छी तरह से देख लो। तो इंटीग्रेशन आई इक्वल टू -1 to 1 -1 to 1 e raised to x dx. So here our a is -1, b is 1, our function f of x is e raised to x, and h is b minus a 1 minus 1 1 plus 1 2 by n। डन, ये सब वैल्यू आ गई। फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। तो क्या था फॉर्मूला हमारा, b -1 डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं, है ना, अदरवाइज मीटिंग ओवर हो जाएगी। सो नाउ b माइनस ए, फॉर्मूला देखते जाओ, b माइनस है 1 minus 1 1 minus -1, so it's a 2, limit n tends to infinite 1 upon n, f of a, so f of -1 plus f of a plus h -1 plus -1 plus 2 by h plus f of a plus 2h -1 upon -1 plus 2h, 2 to the 4 by n, plus कहाँ तक f of a plus n minus 1 h, so it's a -1 plus n minus 1 h is 2 upon n। डन, सिंपल। अभी फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया। आपको एग्जाम में ऐसे ही करना है ना, वो फॉर्मूला लिख के सब नहीं नाटकबाजी करनी है, अदरवाइज आपका सम कंप्लीट ही नहीं होगा। तो दिस इज इक्वल टू 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपॉन n। नाउ f ऑफ -1, f ऑफ x क्या है, e रेज टू x, जो x है वो e के पावर में जाएगा, तो f ऑफ -1, तो e रेज टू -1 होगा, प्लस e रेज टू x, x की जगह पर अभी देखिए -1 -1 प्लस 2 बाई n, प्लस e रेज टू -1 प्लस 4 बाई n, कहाँ तक, so e रेज टू -1 प्लस, ये जिसको लिखते हैं n-1 बाई n इंटू 2, सो 2 इंटू n-1 बाई n। कुछ दिख रहा है कॉमन, 2 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी 1 बाई n, है ना। देखो पावर को सेपरेट करो, तो e रेस टू -1 इज 1 अपॉन e, प्लस इसका सेपरेट करेंगे, पावर करेंगे, क्या होगा, e रेस टू -1 इंटू e रेस टू 2 बाई n, है ना, ऐसा होगा ना, e रेस टू e रेस टू -1 इंटू e रेस टू 2 बाई n, बेस कॉमन, तो पावर का एडिशन, तो वो e रेस टू -1 को 1 अपॉन e लिखते हैं, तो ये होगा e रेस टू 2 बाई n अपॉन e, प्लस सिमिलरली हियर e रेस टू 4 बाई n अपॉन e, प्लस यहाँ पर भी होगा, यहाँ पर क्या होगा, e रेस टू -1 और ये e रेस टू 2 बाई n n-1 अपॉन e कॉमन बाहर आ जाएगा, लिमिट के बाहर भी आ जाएगा डायरेक्ट, इट्स 2 बाई e लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपॉन n, 1 अपॉन e कॉमन ले लिया, इट्स 1 प्लस e रेस टू 2 बाई n प्लस e रेस टू 4 बाई n प्लस e रेस टू 2 बाई n इंटू n-1। ये देखो, तो ये हमारी जीपी आ गई, जीपी 11th स्टैंडर्ड में जो जीपी थी ना, वो जीपी,
है ना, सम ऑफ एन टर्म किसी को याद हो फॉर्मूला तो मुझे याद कराओ। सो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिट 1/n, है ना, ऐसा था ए प्लस ए आर स्क्वेयर प्लस ए आर क्यूब अप टू ए आर रेस टू एन वेयर आर इज कॉमन रेशियो, और सम ऑफ एन टर्म ऑफ जीपी क्या था, आर रेस टू, हाँ, आर रेस टू एन माइनस वन अपॉन एन माइनस वन. So here r is common ratio and common ratio is e raised to 2n. So our formula r is e raised to 2n raised to n minus 1 upon n, sorry, r minus 1 e raised to 2 by n minus 1. याद आया? So here e raised to 2n by n, so n cut, so it's a e square minus 1, e square minus 1 constant term पूरी बार लिमिट के बाहर चली जाएगी, है ना, कांस्टेंट टर्म डायरेक्ट बार. सो दिस इज इक्वल टू, है ना, e raised to 2n by n, so n cut, so it's e square minus 1, e square minus 1 constant term, so that is equal to 2 into e square minus 1 upon e, है ना, ये 2 by e के साथ मल्टीप्लीकेशन में आ गया. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1/n इंटू, यहाँ ऊपर तो कुछ नहीं है अभी, है ना, इसको तो हमने बाहर खींच के ले लिया है, तो अभी क्या बचेगा, 1/1 e रेस टू 2n माइनस 1, e रेस टू 2n माइनस 1. और एक फॉर्मूला था लिमिट में, ऐसा था, लिमिट n टेंस टू 0 या फिर n टेंस टू इन्फिनिट e रेस टू n माइनस 1 बाई n इक्वल टू 1. दैट मीन्स e के पावर में जो है ना वो उसके डिनोमीटर में होना चाहिए. यहाँ पर e के पावर में क्या है, e रेस टू 2 है ना, तो e रेस टू 2n उसके डिनोमीटर में होना चाहिए. मेकअप करना पड़ेगा e स्क्वेयर माइनस 1 बाई e. लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, ये देखो 1/n है ना, इसको मैं इसके डिनोमीटर में ले जाता हूँ, सो इट विल बी 1/e रेस टू 2n माइनस 1 अपॉन ये n को इसके डिनोमीटर में ले गया, है ना, तो ये 1/n ही रहेगा. बट यहाँ पर 2 रेस टू n है ना, 2/n, ये 1/n इसके डिनोमीटर में ऐसे 1/n में जाएगा, लेकिन हमें चाहिए 2/n, तो ये तो 1/n है, तो फिर से इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा, तो 2 एक ऐड कर दिया, तो ये क्या हुआ, इट्स अ 2 इंटू ई स्क्वेयर माइनस 1 बाई ई लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, तो दिस विल बी 1/, है ना, इसको मैं अच्छी तरह से लिख रहा हूँ, ये होगा e रेस टू 2/n माइनस 1 अपॉन, ये n था ना, कहाँ गया ये n, इसको 1/n को पूरा नीचे लिया यहाँ पर 1/n को, तो 1/n को लिया, 2 को मल्टीप्लाई किया, तो इट्स 2/n इंटू 2, डन. तो ये फॉर्मूला आ गया e रेस टू n माइनस 1 अपॉन n, so this is equal to 1 if you are applying our limit, है ना, n टेंस टू इन्फिनिट है यहाँ पर, so n टेंस टू इन्फिनिट 1/infinite, so it's e रेस टू 0, तो ये 1 हो जाएगा सबका पावर, तो 1/2 बचेगा, so this is equal to 2 e स्क्वेयर माइनस 1 बाई ई इंटू ये पूरा 1 और ये 1/2, ये 2 कट, तो इट्स ई स्क्वेयर माइनस 1 बाई ई, और आगे सिंप्लीफाई करना तो पावर सेपरेट करो न्यूमिनेटर के साथ, so it's e minus 1/e. This is your final answer. Clear? So this is how you can solve your question number 5. है ना, लास्ट सम, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 to 4 x प्लस e रेस टू 2x dx. हाँ, एक क्वेश्चन नंबर 5 और एक क्वेश्चन नंबर 6, दोनों इंपॉर्टेंट. सो हियर हो जाएगा, डायरेक्ट कैसे करना है, सेपरेट करना है इंटीग्रेशन को, इंटीग्रेशन i इक्वल टू 0 to 4 x dx प्लस 0 to 4 e रेस टू 2x dx. तो दोनों हमने किए, है ना, ये आपको मिलेगा इंटीग्रेशन i1 करके,
जो क्वेश्चन नंबर 1 में किया था, और ये मिलेगा आपको इंटीग्रेशन I2 करके। डन। तो I1 को तो आप कर सकते हो, एक्स क्वेश्चन नंबर 1 में जो किया था वही है ना, फिर से आ गया। I2 को ट्राई करते हैं, I2 को कैसे निकालना है। सो और I2 इज जीरो टू फोर ई रेस टू टू एक्स डी एक्स। फॉर्मूला अप्लाई करें, यहाँ पर ए क्या होगा 0, बी 4, और एच इज बी माइनस ए 4 माइनस 0 बाई एन, 4 बाई एन। डन। and our f of x is e raised to 2x। लास्ट सम में e raised to x था, यहाँ पर e raised to 2x है ना, सेम ही मेथड है, तो वही फॉर्मूला से करना है। तो दिस इज इक्वल टू फॉर्मूला b माइनस ए, इट्स अ 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपॉन n इंटू f of 0 प्लस f of a प्लस h मतलब 4 बाई n प्लस f of a प्लस 2h 2 इंटू h 8 बाई n। कहाँ तक f of a plus 0 plus n minus 1 h, so it's n minus 1 h is 4 by n, bracket over। Done। Put the values, so this is 4 limit n tends to infinite 1 upon n f of 0 e raised to 0 1 plus f of 4 by n, so it's e raised to 2 into 4 by n, e raised to 2 into 4 by n plus f of 8 by n, so it's e raised to 2 into 8 by n प्लस कहाँ तक e raised to 4 by n है ना, इसको लिखेंगे 4 n माइनस 1 बाई n इंटू 2 आएगा ना, आगे 2 है, तो दिस इज 2 इंटू 4। पावर को थोड़ा सिंप्लीफाई करो, हल्का करो, उसके बाद कुछ सोचते आगे। सो दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपॉन n, दिस इज 1 प्लस 2 into 4 by n, so it's a 2 4s are 8 by n, so it's a e raised to 8 by n plus e raised to 16 by 8 16 by n plus e raised to 4 2s are 8 by n। तो अभी आपको आइडिया आ गया कि क्या करना है, n माइनस 1 है ना, e raised to, ये जीपी आ गई हमारी है ना, डायरेक्ट जीपी है और कुछ नहीं करना है इसमें। फॉर्मूला जो जीपी वाला जो फॉर्मूला लिखा है था क्या था, सम ऑफ n टर्म इक्वल टू r रेस टू n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1, हियर r इज e रेस टू 8 बाय n है ना, कॉमन रेशियो इज e रेस टू 8 बाय 8। डिवाइड करो फर्स्ट टर्म को सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से, थर्ड टर्म को सेकंड टर्म से, तो हमें ये रेशियो मिलेगा, बस ये रेशियो पुट करके आंसर आएगा डायरेक्ट। तो कैसे आएगा, दिस इज इक्वल टू 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट 1 अपॉन n e raised to 8 by n r raised to n, it's n minus 1 upon n minus 1 r minus 1, it's e raised to 8 by n minus 1। डन। 1 अपॉन n को नीचे लाएंगे, और 1 अपॉन n नहीं चाहिए तो हमें 8 चाहिए, तो 8 को मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, तो इट्स अ 4 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिट, दिस विल बी e raised to n कट, e raised to 8 माइनस 1 को बाहर ही ले लेना था, तो इट्स e raised to 8 minus 1 upon, this will be e raised to 8 by n minus 1 upon 1 upon n, तो इट्स 8 upon n, और n को 8 को मल्टीप्लाई किया तो 8, तो e raised to 8 बाहर आएगा, तो क्या होगा 4 इंटू e raised to 8 minus 1 लिमिट n tends to infinite, and this will be 1 upon e raised to 8 by n minus 1 upon 8 by n और इंटू 1 by 8, ये तो 1 हो गया, 1 by 8 यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो 1 by 2, तो होगा e रेस टू 8 माइनस 1
by 2. Done. So this is the answer of your I2. और आपको I1 फाइंड करना है ना? और जो आंसर आए दोनों का क्या करना है? एडिशन. So you get your answer I. Clear, students?